Hello friends, I welcome you all to this 14th video on law of evidence। इस वीडियो में हम सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लें कि हम क्या क्या इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बेयर एक्ट प्रोविजंस देखेंगे कि सेक्शन 10 में बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर इससे जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन है, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, या तो प्रिलिमिनरी में पूछ देंगे या मेंस एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 10 को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम जैसे कि हर एक सेशन में हम एक एक्रोनिम बनाते हैं ताकि हम उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को इजीली रिमेंबर कर सकें। तो हमने सेक्शन 10 के लिए भी बनाया है, और दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद हम प्रिंसिपल देखेंगे कि सेक्शन 10 के पीछे किस प्रिंसिपल काम करती है, या कौन सा प्रिंसिपल सेक्शन 10 के पीछे काम करती है। फिर सेक्शन 10 को कई बार अननेसेसरी ईविल कहा गया है। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ नेसेसरी ईविल एक्सप्लेन। तो हम उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। दो ये इंडियन पीनल कोड में हम इसे बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ाई करेंगे इसकी, बट यहाँ पर हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि कॉन्स्पिरेसी का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार शॉर्ट नोट्स या आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ एज फार एज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस इज कंसर्न, कि जो इंग्लिश लॉ है और इंडियन लॉ है उसमें क्या अंतर है। फिर वी विल ऑल्सो लुक आफ्टर सर्टेन केस लॉज। तो लेट्स स्टार्ट। So section 10 states things said or done by conspirator in reference to common design, where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or actionable wrong. So wherever there is a prima facie evidence of conspiracy, anything said, done, or written by any one of such person in reference to their common intention. So there should be anything said, done, or written by any of the co-conspirator in reference to the common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them. So after the intention has been formed, is relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was party to it. So if there is prima facie or reasonable ground to believe that there is a conspiracy, then anything which is said, done, or written by any one of them in reference to common intention after such intention is formed is relevant to prove the existence of the conspiracy, as well as for showing that such person was a party to it. अब इसका एक illustration attached है, let us see illustration, and this illustration is very important. Reasonable ground exists for believing that A had joined in a conspiracy to wage war against the government of India. So there is a reasonable ground that A had joined a conspiracy, and that conspiracy was to wage a war against government of India. The fact that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, C collected money in Calcutta for like object, D persuaded person to join conspiracy in Mumbai, E published writings advocating the objects in view at Agra,
and F transmitted from Delhi to G at Kabul a money which C had collected at Calcutta, and the contents of a letter written by H giving an account of conspiracy are each relevant, both to prove the existence of conspiracy and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them. So यदि ऐसा है कि ए को एक कॉन्स्पिरेसी के लिए एक्यूज किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें जितने लोग शामिल हैं, जैसे बी हैज प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, सी हैज कलेक्टेड मनी इन कैलकाटा, डी हैज परसुएडेड पर्सन्स इन मुंबई टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं, दो ए को इसके बारे में पता ना भी हो तब भी। अब ये जो लास्ट फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। एंड ऑल्दो द पर्सन्स बाय हुम दे वर डन वर स्ट्रेंजर्स टू हिम, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it, कि ऐसा नहीं है कि anything said, done or written वो तभी हो जब तक ए पार्ट हो कॉन्स्पिरेसी का। Even if this thing was done before A joined or after A left, then also these things will be relevant against A also. So this is very important aspect. Now we will just decode section 10 of Indian Evidence Act और हम देखेंगे कि इसका एसेंशियल एस्पेक्ट्स क्या क्या है। बट उसके पहले मैं एक आपको एक्रोनिम बना करके दे दूं ताकि आप इसे इजीली रिमेंबर कर सकें, और इसका एक्रोनिम है ICAR। ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बट हमने उसे बनाया है आई इंटेंशन। सो इंटेंशन होना चाहिए, सी कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, ए एक्ट, एक्ट इज एनीथिंग सेड, डन और रिटन, and R is reference to this thing which is said, done or written should be in reference to the intention. Then that is relevant to prove that there was a conspiracy and such a person was a party to the conspiracy. तो यदि intention है, conspiracy है, act that is said, done or written है and it is in reference to the intention, तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं या ये रेलिवेंट हो जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड सो पर्सन वाज पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। नाउ सरदार शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को डिकोड किया गया था। क्या क्या कहा गया था कि फॉलोइंग कंडीशंस, यदि इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्या क्या, कि देयर मस्ट बी अ कॉन्स्पिरेसी, and then उसके बाद क्या, there must be an intention to conspire and that intention is not entertained by all of them but entertained by any of them। तो conspiracy होना चाहिए और intention होना चाहिए। उसके बाद anything which is said, done or written in reference to the common intention, this is the third and the fourth point, by any one of them, ऐसा नहीं है कि सबके द्वारा बट किसी भी एक के द्वारा, while the conspiracy was still continuing and has not come to an end। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पे हम आगे केस लॉज भी देखेंगे कि ये जो थिंग है said, done और written, ये तब होना चाहिए जब कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू हो रहा हो, बट वंस कॉन्स्पिरेसी हैज कम टू एन एंड then anything said, done or written वो relevant नहीं होगा under section 10 of Indian Evidence Act। Is relevant to prove that existence of the conspiracy and that such person was party to it, even if the conspirator had joined after or left before such thing was said or written। तो कहने का मतलब है कि anything which is said, done or written during the conspiracy by any one of them
after intention has been formed is relevant under section 10 of Indian Evidence Act. मगर एक बार कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, then under section 10 it will not be relevant as such. और ये relevant किसके लिए है? Both to prove conspiracy and also to prove that a particular person was party to that conspiracy. तो अब हम देखेंगे कि इस ऐसा क्यों है कि कोई एक आदमी कह रहा है और ये, या एक आदमी सेड डन कुछ कह रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ लिख रहा है, और ये सबके जितने को कॉन्स्पिरेटर्स हैं सबके अगेंस्ट रेलिवेंट क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी स्टेट्स that if two or more persons conspire together, then each is regarded as agent of the other. यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में कॉन्स्पायर करते हैं तो हर एक को एक दूसरे का एजेंट माना जाता है. सपोज देयर आर 3 persons, 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, तीनों कॉन्स्पायर करते हैं किसी चीज के लिए या किसी एक आदमी के मर्डर के लिए. तो ए को बी का एजेंट माना जाएगा, बी को ए का एजेंट माना जाएगा, ए को सी का एजेंट माना जाएगा, सी को ए का एजेंट माना जाएगा. सिमिलरली बी को सी का, सी को बी का. सो ऑल द 3 विल बी कंसिडर्ड टू बी द एजेंट ऑफ ईच अदर. और इसलिए ये बी जो है सिर्फ अपने ही काम के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि जो ए भी करेगा, जो सी भी करेगा, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन या इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, बी उसके लिए भी लायबल होगा. तो यदि कॉन्स्पायर करता है बी ए और सी के साथ, तो बी सिर्फ अपने ही काम के लिए, अपने ही कृत्य के लिए नहीं, बल्कि ए और सी के काम के लिए भी या कृत्य के लिए भी लायबल होगा. सो दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. मैं पढ़ देता हूं. If 2 or more persons conspire together to commit an offense, so 2 or more persons like A, B and C, 3 persons have conspired to commit an offense, then principle of agency states that each is regarded as being the agent of the other. Everyone is the agent of the other, and conspirator is liable for what is done by his fellow conspirator. So a person is not only liable for what he does personally, but he is also liable of what his co-conspirators does in reference to their common intention. So this is what is principle of agency, and therefore when anything which is said, done or written by any one of them is a relevant fact against all of them, also relevant to prove that there was a conspiracy, and also relevant to prove that a person was a party to it. उसके बाद इसको एक नेसेसरी इविल बताया गया है. क्यों नेसेसरी इविल, ये हम तोड़ देंगे. पहले हम देखेंगे कि इसको इविल क्या कहते हैं, फिर हम देखेंगे इसको नेसेसरी क्यों है, और तब हम देखेंगे कि कोर्ट एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ जज, हमारे पास क्या ऑप्शन है हाउ टू डील विद दिस नेसेसरी इविल. तो इसको इविल कहते हैं क्योंकि इट हैज पोटेंशियल टू रोप इन द इनोसेंट पर्सन विद द गिल्ट. कि चूंकि एक ही आदमी, यदि एक आदमी भी उसमें से कुछ कहता है या कुछ करता है या कुछ लिखता है, then it becomes relevant against all other persons. तो मे बी सपोज A says something, ये B है, ये C है और D है. D A के बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये D के अगेंस्ट रेलिवेंट होगा. So it has the potential to rope in the innocent with the guilt. Then person who have genuinely abandoned or regretted, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी को छोड़ दिया है या जो कॉन्स्पिरेसी से अब वाकिफ नहीं रखते हैं, तो उनको भी इसके अंदर रेलिवेंट, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है. कैसे? सपोज देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, A, B and C are part of it. Now C leaves it before the conspiracy is over. Yet whatever is said by A, even after C has left the conspiracy, will be relevant, जो ऐसा illustration में लिखा हुआ है.
एक छोटा सा इसका केस लॉ भी है, कहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी का दो आदमी थे, सपोज ए और बी, और ये छत पर आपस में मिले और छत पर इन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद ये लोग नीचे आए और लोगों ने इनसे पूछा कि आपने ऊपर में क्या गुफ्तगू की, क्या किया। इन्होंने उस क्वेश्चन को अवॉइड किया। लेटर ऑन ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग फॉर द मर्डर ऑफ सी। तो चूंकि ये आपस में ऊपर गुफ्तगू किए अपने से लोगों से थोड़ा सा हट करके, और क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको इन्होंने अवॉइड किया, इसलिए ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया अंडर सेक्शन 10 के मे बी ए इज ऑल्सो a part of this conspiracy to murder C and B was also convicted on this account। तो कभी कभी एक छोटी सी चीज भी एक आदमी के अगेंस्ट रेलिवेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 10, दो ही मे नॉट बी हैविंग दो ही मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर statement or act or what was written। So the two accused, one of whom actually caused death, were seen together before the event, isolating themselves on rooftop। छत पर उन्होंने एक दूसरे से अलग होकर के थोड़ी बातें की, making every possible effort to conceal their conversation from the family members। और फिर फैमिली मेंबर्स ने पूछा कि आप लोगों ने क्या बात की, तो वो कुछ भी नहीं बताए। The act of avoiding question about the content of their conversation was taken to be enough to believe that they were conspiring about something। ये जो एक्ट था कि वो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि हम लोगों ने आपस में क्या गुफ्तगू की, ये बी के अगेंस्ट भी रेलिवेंट मान लिया गया। बट फिर ये यदि इविल है तो इसे हमें इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था। हमने इसे इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम। कहा जाता है कि कॉन्स्पिरेसी इज हैच्ड इन सीक्रेसी। एक फेमस केस लॉ है जो हम आगे देखेंगे। तो उसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्पिरेसी इज हैच्ड इन सीक्रेसी एंड एग्जीक्यूटेड इन डार्कनेस। कि जो षड्यंत्र है वो सीक्रेटली बनाते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं डार्कनेस में। इसलिए हम नहीं पता कर सकते या एग्जैक्टली हम साइंटिफिक सर्जिकल वे में पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि वन इज मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर। अ कॉन्स्पिरेसी इज हैज्ड in secrecy and executed in darkness। Naturally, therefore, it is not feasible for the prosecution to connect each isolated act or statement of one accused with the acts or statement of the other। So, यदि हम सबके चीजों को अलग अलग आइसोलेशन में लें, then we will not be able to bring to book the guilty ones। इसलिए इसके नेचर ऑफ क्राइम कॉन्स्पिरेसी का ऐसा होता है कि ये बहुत ही सीक्रेटली बनाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि whatever is said, done or written by any one of them is made relevant against the other also। बट यदि ये नेसेसरी इविल है तो क्या कोर्ट इसके आगे विवश है? नहीं, कोर्ट विवश नहीं है। देयर इज अ वे आउट। सेक्शन 10 ये नहीं कहता है कि यदि ऐसा कुछ हुआ देन कन्विक्ट देम। सेक्शन 10 सिर्फ उसे रेलिवेंट बनाता है। अब उसका कितना वेटेज देना है, कितना द एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस एंड गिविंग ड्यू वेटेज टू इट इज फंक्शन ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट यदि कन्विंस्ड है कि ये दो सेक्शन 10 में रेलिवेंट है, बट कोर्ट को लगता है कि इट मे नॉट बी ऑफ ड्यू वेटेज टू कन्विक्ट ऑन दैट ग्राउंड, कोर्ट मे रिफ्यूज इट। बट यदि कोर्ट को लगता है कि इट इज ऑफ ड्यू वेटेज एंड कन्विक्शन कैन बी ऑन दैट ग्राउंड, देन कोर्ट कैन कन्विक्ट इट। So though it is a necessary evil, it is evil because it has potential to rope in the innocent person. It has also potential to rope in those who have genuinely abandoned it. But it's necessary because of the nature of the crime, of the
secrecy of the execution way it is done, and therefore it is very difficult to bring them to the book. Therefore, it is made, but it is left to the court as to appreciate the evidence, give due weightage to it, and convict on that basis or not. अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्स्पिरेसी के? फ्रेंड्स, कॉन्स्पिरेसी के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. एक, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन. कॉन्स्पिरेसी हमेशा मोर देन वन पर्सन में होगा, यानी कि टू और मोर देन टू. So there should be plurality of persons. Then there should be an agreement. These two persons or two or more persons should have an agreement among themselves. Agreement किस चीज के लिए? To do an unlawful act or a lawful act by unlawful means. Agreement होना चाहिए एक unlawful act के लिए या unlawful या एक कोई lawful act unlawful means के द्वारा. So यदि ये तीनों चीजें हैं, then there is a conspiracy. Now, what is the difference between English law and Indian law as far as this section 10 of Indian Evidence Act is concerned? Now, English law में जो हमने कहा ना कि anything which is said, done or written. Now, any statement is made relevant if it is in reference to the common intention. But English law में mere statement is not relevant. ठीक है? Under English law, a mere statement about conspiracy would not be relevant. So mere statement will not be relevant. But Indian law में mere statement, if it is in the reference to common intention, will be relevant. So under English law, a mere statement about a conspiracy would not be relevant, while under Indian law, it is enough if the statement has reference to the common intention. So English law में statement सिर्फ और सिर्फ statement relevant नहीं होगा. Indian law में if it is in reference to common intention, it will be relevant. Now एक और difference है जो हमने last phrase पढ़ा था कि anything which is said, done or written while the conspiracy was continuing will be relevant even if after that person has left it, or even those statements, those things said, done or written before that person has joined the conspiracy. So A ने conspiracy join की, उसके पहले भी यदि कुछ said है, done है या written है, या A ने conspiracy छोड़ दी, उसके बाद भी anything which is said, done or written by anyone, for example B और C है, A और B और C थे conspiracy में, तो B और C यदि उसके पहले थे, उन्होंने जो कुछ कहा और A ने छोड़ दिया, उसके बाद भी कुछ कहा, वो भी relevant हो जाता है against A Indian law में, but English law में ऐसा नहीं है. So according to illustration appended to section 10, anything said, done or written may be proved against a co-conspirator who joined after or left before such thing was said, done or written. So English law में even A के join के पहले या A के joining के पहले भी यदि कुछ said, done और written है तो A के against relevant हो जाएगा. A ने छोड़ दिया, उसके बाद भी उसके co-conspirator ने कुछ said, done या written किया है, तो वो भी A के against माना जाएगा. But English law में ऐसा नहीं है. Under English law, such a conspirator is protected. Now we will see the case laws, two case laws. तो हमने देख लिया कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या अंतर है. एक mere स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है इंग्लिश लॉ में, जबकि इंडियन लॉ में है. और दूसरा के जो कॉन्स्पिरेटर्स छोड़ दिए हैं या उसके पहले यदि कुछ सेड, डन और रिटन है तो वो भी उसके रेलिवेंट माना जाता है इंडियन लॉ में, बट इंग्लिश लॉ में नहीं माना जाता है. नाउ देयर आर case laws. We will discuss two case law. One is Badri Rai versus State of Bihar. जब हम necessary evil पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था it is necessary because of the nature of the offense. ये statement
इसी केस से लिया गया था, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था कि एक सुनार रहता है गोल्ड स्मिथ, और वो पुलिस ऑफिसर जो है, एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो इसको पकड़ लेता है जब वो जो स्टोलन ऑर्नामेंट्स रहता है उसको मेल्ट करता रहता है। तो इसके ऊपर एक केस डाल दिया जाता है। फिर एक बार ये पुलिस ऑफिसर से अपने एक दोस्त बी के साथ मिलता है और कहता है कि आप इस केस को दबा दें, हम आपको पैसे देंगे या ब्राइब देंगे। उसके कुछ दिन बाद पी जब अपने ऑफिस में रहता है तो बी जो है वो पी के पास जाता है और इसे एक बंडल देता है पैसे, और कहता है ये वो पैसे हैं जो जी और बी हमने आपसे बात की थी इस केस को दबाने के लिए। पी एक ईमानदार पुलिस अफसर रहता है, वो अपने सीनियर अफसर्स को बताता है और जी और बी के अगेंस्ट एक केस स्टैब्लिश करता है कि इन्होंने हमें ब्राइब करने की कोशिश की। अब इसमें लीगल पॉइंट ये आता है कि पैसे देने या ब्राइब देने सिर्फ बी गया था, और बी ने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया कि ये वो पैसे हैं जो जी और मैंने आपसे मिलकर के बात की। Now G was not at all involved directly in giving the bribe. जी कहता है कि जी हमने इन्हें भेजा ही नहीं था पैसे लेके। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये स्टेटमेंट अगेंस्ट जी रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। तो कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये दिया हुआ है कि anything which is said, done or written by any one of them while in reference to their common intention, while the conspiracy is continuing, will be relevant against the other also. तो चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुई थी, ब्राइब अभी पूरा दिया नहीं गया था, दिया ही जा रहा था, तो कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू थी। कॉमन इंटेंशन इस तरीके से एस्टैब्लिश हो गया था कि दोनों ने पहले मिलकर के पुलिस अफसर को बताया था कि आप इस केस को दबा दें, हम आपको पैसे देंगे, और बी वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर था, इसलिए वो स्टेटमेंट रेलिवेंट माना गया अगेंस्ट जी ऑल्सो। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट। In a conspiracy to hush up the pending criminal case by bribing a police officer, the statement of B that, तो ब्राइब दिया गया, और ब्राइब देते वक्त बी क्या कह रहा है, जी the goldsmith who was found melting ornaments in front of his shop had sent me with the money in pursuance of the talk we had with you on the 24th as a reward for hushing up the case against G. तो जी एक गोल्ड स्मिथ है, उसके अगेंस्ट एक केस फाइल हो गया था क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स को मेल्ट कर रहा था जो स्टोलन ऑर्नामेंट्स थे। नाउ ये स्टेटमेंट वेर हेल्ड एडमिसिबल अगेंस्ट जी एंड बी इन प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इट वाज फाउंड एडमिसिबल। It was held that the object of conspiracy had not been accomplished as this statement was made in course of conspiracy. तो कॉन्स्पिरेसी उस समय चल ही रहा था जब उसने ये स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्पायर किया था कि हम पुलिस अफसर को पैसे दे करके मैटर को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, एंड accompanied by the act of payment meant as bribe, और साथ साथ पैसे भी दिए थे। So in this case, this statement was found to be relevant against G also. Now, another case is Mirza Akbar versus King Emperor. अब ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लव ट्रायंगल पे है कि एक मिर्जा अकबर हस्बैंड रहता है, एक वाइफ रहती है और एक पैरामोर रहता है। पैरामोर मतलब वाइफ का लवर। नाउ इन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है और इसलिए ये हस्बैंड को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये एक थर्ड पर्सन को हायर करते हैं जो इसका हस्बैंड का मर्डर कर देता है, और मर्डर करने के बाद टी पकड़ा जाता है तो फिर वो बताता है कि एक्चुअली ये
डब्ल्यू जो वाइफ है और जो पैरामोर है, इन्होंने हमें पैसे दिए थे और उसके बेसिस पे हमने ये मर्डर किया उससे। फिर डब्ल्यू और पी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दो तरीके के एविडेंस होते हैं। ये जो वाइफ होती है और ये जो पी पैरामोर होता है, इन्होंने आपस में 3 लव लेटर एक्सचेंज किए होते हैं, जिसमें कि वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से बाय विच वेज एंड मीन्स एच को अपने रास्ते से हटाना है। ये तो एक है। दूसरा, जो वाइफ होती है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ स्टेटमेंट देती है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो लेटर्स इन्होंने आपस में एक्सचेंज किए हैं ये रेलिवेंट हैं या नहीं हैं अगेंस्ट पी। नाउ दैट इज, जो लेटर डब्ल्यू ने लिखा है वो पी के अगेंस्ट रेलिवेंट है या नहीं, और जो पी ने लिखा है वो डब्ल्यू के अगेंस्ट रेलिवेंट है या नहीं। तो कोर्ट कहती है कि अंडर सेक्शन 10 एनीथिंग विच इज सेड, डन और रिटन while the conspiracy is still continuing by any one of them will be relevant against the other also। तो कॉन्स्पिरेसी चल ही रहा था, अभी इन लोगों ने इसका मर्डर तो नहीं किया था। तो लेटर में तो जस्ट वेज एंड मीन्स की बात कर रही थी, चल रही थी कि किस तरीके से इसको रास्ते से हटाया जाए। तो इसलिए जो लेटर था इट वाज something which was written during the conspiracy and therefore was held relevant. Now, second aspect was, what about the statements made by the wife before magistrate? क्या वो relevant होगा या नहीं होगा, जिसमें उसने ये कहा था कि पी भी इस conspiracy का एक पार्ट है। Now, कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये स्टेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के बाद कहा गया है, कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गया था, हस्बैंड का एक बार मर्डर हो गया, द कॉन्स्पिरेसी ने अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया, इसलिए ये स्टेटमेंट जो इसके बाद कॉन्स्पिरेसी के बाद कहा गया है दैट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि उस समय कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रहा था। नाउ आई विल जस्ट रीड इट आउट। मिर्जा अकबर एंड तजा, तजा इसकी वाइफ का नाम है, महर तजा, wife of the deceased, the husband, and Umar Sher was the person who was hired to kill the husband. A hired assassin were charged with the conspiracy and murder of Ali Asgar, husband का नाम Ali Asgar था, committed under the joint effort while on trial for conspiracy to murder her husband. Meher Taza had made certain statements implicating Mirza Akbar। तो मेहर तजा ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, मिर्जा अकबर इसका जो पैरामोर था उसका नाम था। देयर वॉज ऑल्सो एविडेंस ऑफ 3 लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन देम, और 3 लेटर थे जो इन्होंने आपस में एक्सचेंज किए थे। एज द लेटर्स वर रिटन, तो लीगल क्वेश्चन यही था कि वेदर द लेटर्स विल बी रेलिवेंट अगेंस्ट ईच अदर एंड वेदर द स्टेटमेंट मेड बाय मेहर तजा विल बी relevant against the Mirza Akbar। तो कोर्ट ने कहा कि as letters were written at the time when conspiracy was going on, चिट्ठी तब लिखी गई थी जब conspiracy पूरा नहीं हुआ था, and with a view to attaining their object, that is in reference to their common intention, it was relevant। So letter will be relevant. Why? Because conspiracy was going on and it was in reference to their common intention। However, the statement made before the magistrate, statement जो मेहर तजा ने मिर्जा अकबर के अगेंस्ट कहा था मैजिस्ट्रेट के बाद, did not fall under section 10, वो सेक्शन 10 के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? As it was made after the object was attained and conspiracy had ceased to exist, क्योंकि वो स्टेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के बाद कहा गया है, ना कि कॉन्स्पिरेसी के पहले। कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी जब एक बार हस्बैंड का मर्डर हो गया। सो दैट इज व्हाट इन दिस केस ऑफ मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। Let us have a quick recap of what all we did in this session. So first of all, as usual, we saw the Bare Act provision, जिसको हमने डिकोड करने की कोशिश की, और हमने देखा कि if there is intention, there is conspiracy, there is act of say statement and things said, done or written, and this act in reference to the common intention। तो दो चीजें जो है वो
रेलिवेंट हो जाती हैं। एक तो ये रेलिवेंट, ये जो सेड, डन और रिटन है, ये रेलिवेंट हो जाती है ये प्रूफ करने के लिए कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, ये भी प्रूफ करने के लिए कि सो एंड सो पर्सन वाज पार्टी टू दैट कॉन्स्पिरेसी। So if there is a conspiracy, there is an intention, and in reference to the common intention, anything is said, done, or written by any one of them, but it should be while the conspiracy was continuing, then it is relevant to prove that there was a conspiracy and so person was a party to it. But it is also relevant against the conspirator who have already left it or who had joined after such thing was said, done, or written. Now principle, it is based on principle of agency. Principle of agency ये कहता है कि यदि दो या दो से ज्यादा आदमी कॉन्स्पायर करते हैं, then each is agent of the other and each is liable for the act of the other also. Then section 10 को एक necessary evil माना गया है। Evil इसलिए क्योंकि it has potential to rope in the innocent person as well as those who have genuinely abandoned or regretted it, as we have seen in Kehar Singh versus State. Then it is necessary because of the nature of the crime that a conspiracy is hatched in secrecy and executed in darkness. Way out is that that some facts are, section 10 only makes some facts relevant. The weightage to be given to it, the appreciation of evidence is to be done by the court. फिर हमने देखा कि कॉन्स्पिरेसी के क्या क्या एसेंशियल हैं कि देयर शुड बी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट शुड बी टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। फिर हमने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में अंतर देखा कि इंग्लिश लॉ में मियर स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होता है, इंडियन लॉ में मियर स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन विल बी रेलिवेंट। देन इंडियन लॉ में anything which is said, done, or written before a person has joined or after he has left by any of the co-conspirator will be relevant, but English law में वो relevant नहीं होगा। फिर हमने दो केस लॉ देखा, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बद्री राय में हमने देखा कि any statement which is made by any one of them will also be relevant against the other। उसके बाद हमने एक केस लॉ देखा, मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। इसमें कि द स्टेटमेंट विच इज मेड during the conspiracy, even exchange of letter, those letters will be relevant against each other, but statement which is made after the conspiracy is over will not be relevant. So that's all for today's session. Thank you, friends.